Hello, doctors and parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session, we're going to discuss about the NEET PG 2023 All India Round 2 regarding our registration and reset button option, how to upgrade your seat, what are the rules and regulation. If there are multiple of the rumors are also going on that if you got any allotment in your All India Round 2, you will be debarred from state counseling. As well as we're going to discuss about some latest update about states counseling regarding their round 1 counseling also, because there are multiple of the states. In those states the round 1 even has not begun yet. So what are the latest updates regarding them, how to proceed for a counseling, these details will be shared in this video. Before that, if you are new in this channel and if you haven't subscribed to our YouTube channel, then do subscribe it. As well as do join our Telegram channel Admission Media, because whatever the latest updates and their PDFs and everything, we are continuously posting there. So if you haven't joined that particular channel, you can download the Telegram and search down Admission Media and you will get our channel. Do join it. As well as you can follow us on one Instagram platform also. The page name handle is Admission Media. मेनली अगर मैं बात करूँ राउंड 2 के अपडेट्स के बारे में, तो अभी तक आपकी काउंसलिंग शेड्यूल के पहले मैं बात कर लेता हूँ. ऑलरेडी आपकी काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश की जा चुकी है. एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल, your 23 the registration was the choice filling was started from 22nd of August itself. 24th of August till 11:55 PM your choice filling will be there. Means कल लेट नाइट 12 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग है. ऑटो लॉक होता है ऑल इंडिया में. लॉकिंग अगर आप करना भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. योर चॉइसेस विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड. 25 and 27 your seat processing will be there, and on 28th of August your result will be there. And from on 29th you have to upload your documents. Again the dates will be extended. Means uploadation of documents will be extended. जो अपलोड करने का डॉक्यूमेंट का टाइम रहता है, राउंड 1 में भी सिर्फ 1 दिन दिया गया था, बट 2 से 3 दिन तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे थे. तो मोस्ट प्रोबेबली आपका राउंड 2 में भी एज इट इज रहेगा. द रिपोर्टिंग टाइम विल बी फ्रॉम 29th of August to 5th of September, and the round 3 or earlier which was called mop-up round will be starting from 8th of September. So revised cutoff आपका 8th of September के पहले ही आने के चांसेस हैं, but most probably it will be after the All India Round 2 result joining, as well as multiple states counseling will be ongoing after completion of states counseling or revised cutoff. Most probably will be published. It won't be like, in the next video we will be discussing about the complete detail regarding your NEET PG revised cutoff, that exactly how much it can come, what are the possibilities, how to proceed for a seat, कब आ सकता है, कितना आएगा, कैसे प्रोसीड करनी चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे सीट मिल सकता है. इन तमाम चीज़ों को एक अलग वीडियो में रखेंगे रिवाइज कट ऑफ के. इस वीडियो में मैं अगर आपसे बात करूं, द बिग प्रॉब्लम और द बिग कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन कि इफ यू गॉट एनी अलॉटमेंट इन योर राउंड 2 ऑल इंडिया राउंड 2 यू विल बी डिवाइडेड फ्रॉम स्टेट्स काउंसलिंग. द रूल इज नॉट लाइक दैट. टिल नाउ नन ऑफ अ स्टेट हैज पब्लिश्ड अ नोटिफिकेशन in which they have mentioned that if you got any allotment in your all India round 2 you will be debarred from the states counseling. Till now there is nothing, but on the joining the rules are changed. if you got any allotment in your all India round 2 आप चाहो तो सिक्योरिटी अमाउंट अपनी फोरफिट करके उस सीट को छोड़ सकते हो. लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो और ज्वाइन एंड अपग्रेड करते हो, उस केस में रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है. महाराष्ट्र गुजरात स्टेट ने ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है, इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन द ऑल इंडिया राउंड 2 सीट दे विल बी डिबार्डिंग फ्रॉम देयर स्टेट काउंसलिंग. बाकी स्टेट्स क्या करेंगे कहना बाकी है. सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी वर्डिक्ट आ चुका है, डिसीजन आ चुका है 21st of अगस्त को. आफ्टर दैट एमसीसी का कोई अपडेट नहीं है ऑन दिस रूल दैट अपग्रेडेशन कैसे करना है, या आप अगर ज्वाइनिंग कर लेते हो तो बाकी स्टेट से आपको एलिमिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये मेंशन कर चुकी है कि अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को ज्वाइन कर दिया देन यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स काउंसलिंग. अलॉटमेंट पे आपको एलिमिनेट नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग पे एलिमिनेट करेंगे, और ज्वाइन एंड अपग्रेड करने जाते हो तब एलिमिनेट करेंगे. सो बी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स. अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स के लिए, रीसेट ऑप्शन इज अवेलेबल टिल 9 PM. इट्स ऑलरेडी 7:54, तो आपके पास 1 आवर का टाइम है. रीसेट ऑप्शन इज मेनली फॉर दोज कैंडिडेट जिन्होंने ओबीसी में है, सर्टिफिकेट नहीं बन पाई है, जनरल में अप्लाई करना है, यू कैन चेंज योर कैटेगरी, बट जनरल टू समथिंग एल्स वोंट बी देयर. बट किसी भी अदर कैटेगरी से आप जनरल में कन्वर्ट हो सकते हो, ये रीसेट ऑप्शन में देगा. अभी तक अगर आपने सिर्फ ऑल इंडिया में डीएनबी अप्लाई किया था, ऑल इंडिया 50% अप्लाई किया था, अभी एनबी डिप्लोमा ऐड करना है, रीसेट करके आप कर सकते हो. डीम्ड में अप्लाई करना है आप कर सकते हो.
अभी तक सिर्फ 50% ऑल इंडिया के लिए कर रहा हुआ था, 25,000 जनरल के लिए बोलो, 25,000 आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे की थी। अभी डीम्ड में भी करना है तो 2 लाख रुपीज और पे करके आप डीम्ड में भी ज्वाइन कर सकते हो या एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स की बात करूं, एनआरआई लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। एनआरआई लिस्ट से अगर मैं पहले बात करूं तो ऑल इंडिया के अंदर 50% ऑल इंडिया के लिए टोटल आपकी 7,700 सीट्स अवेलेबल है। दीज आर क्लियर वैकेंसीज विच आई एम टॉकिंग राइट नाउ। Almost 7,700 total clear vacancies are available for your All India Round 2. If I talk about 260 more seats has been added in this. Almost 2,010 non-clinical seats are there. 5,690 clear clinical vacancy seats which will be available in your All India Round 2 for your choice filling. DNB के लिए बात करूँ तो 2,729 एंड बी डिप्लोमा की मैं बात करूँ तो 1386 दैट इज 1,386 आपकी सीटें अवेलेबल है एनबीए डिप्लोमा में। एनआरआई सीटों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रेज होने वाली है मॉपअप राउंड के लिए या राउंड 3 के लिए। लेट मी टेल यू व्हाई। इन ऑल इंडिया राउंड 2 टोटल क्लिनिकल एनआरआई सीट्स अवेलेबल फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 2 इज 451। और अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं तो ऑलरेडी 420 कैंडिडेट्स आर अवेलेबल टू टेक द सीट। ऑलरेडी इन राउंड 1 306 candidates have joined the seat in your all India round 1 itself, and round 2 में भी most probably यही चीजें देखने को मिलेंगी। Even if seats will be vacant out, most probably लोअर क्लिनिकल और मिड क्लिनिकल की ही सीटें आपकी एनआरआई में अवेलेबल रहेंगी। हायर क्लिनिकल की सीटें मैनेजमेंट कोटा में ही बचेंगी, एनआरआई सीटें तो ओवर हो जाएंगी। तो अभी तक जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे थे या इफ यू आर वेटिंग फॉर रिवाइज कट ऑफ एंड आपने एनआरआई डॉक्यूमेंट बना लिया और आपको लग रहा है कि हायर क्लिनिकल ब्रांचेस रेडियो डर्मा मेडिसिन गायनी तक अलॉट हो सकता है आपको, तो बिलीव मी चांसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं। लेट्स वेट फॉर द राउंड 2 ज्वाइनिंग, उसके बाद ही क्लियर आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली कितनी सीटें बच रही हैं। बट ऑलरेडी आज की लिस्ट में ऑलरेडी आपके 136 कैंडिडेट्स मोर हैज बीन एडेड इन योर एनआरआई लिस्ट। अर्लियर आपके ऑलरेडी 300 प्लस थे। सो ऑलमोस्ट आपके 420 कैंडिडेट्स हैं इस 451 सीट्स को लेने के लिए। तो ये मेनली आपके हायर क्लिनिकल ही टारगेट कर रहे होंगे, बिकॉज वी ऑल नो अगर कोई एनआरआई डॉक्यूमेंट रेडी करता है तो रेडियो डर्मा मेडिसिन गायनी पीडिया ऑर्थो ही देखता है। इसके नीचे के ब्रांचेस वो जल्दी चूज नहीं कर सकते हैं टिल ये कॉलेज उनका कोई प्रेफरेंस हो या कुछ प्रेफर्ड कॉलेज हो कि लाइक मुझे पर्टिकुलर यही कॉलेज चाहिए होता है। इन दैट केस पीपल यूज द एनआरआई डॉक्यूमेंट। बट अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट कोटा के लिए तो इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज 1750 yes 1750 मैनेजमेंट कोटा सीट्स आर अवेलेबल फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 2। इसी पे काउंसलिंग होनी है। ओवरऑल अगर आप मैनेजमेंट कोटा एनआरआई कोटा के लिए देख रहे हो इन राउंड 3 और इवन आफ्टर रिवाइज कट ऑफ, then you have to be very careful regarding your counseling because counseling में competition बहुत ज़्यादा हाई है। सिर्फ एनआरआई डॉक्यूमेंट बना लेने से सीट नहीं मिलेगी इस बार स्मार्ट काउंसलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ये भी नहीं है कि लास्ट में एनआरआई कोटा की सीटें बचेंगी, आप कॉलेज को मिलकर एडवांस पेमेंट करके सीट अलॉटमेंट कर सकते हो। सारी चीज़ें अथॉरिटीज़ के हाथ में है, कैसे होनी चाहिए, कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे सीट नहीं मिल सकता है। जैसा कि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं आपको, इफ़ यू हैव ए branch preference you can contact us, but you have to be flexible with your state as well as a college option. But if you are fixed with your college or state preference, then you have to be flexible with your branch option. In this category you are eligible, and you are eligible even after just revise cutoff till even we can get the radio derma medicine gynae pedia surgery opthal ortho any branch of your choice depending upon what budget you looking for, how to proceed for it। क्योंकि स्मार्ट काउंसलिंग या जो एक्सपीरियंस है वो यहीं पे वर्कआउट करेगा, कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए यू कैन अवेल अवर प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज। द डिटेल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट admissionmedia.in। फॉर एनी डिटेल्स और एनी इंक्वायरी यू कैन कॉल मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज 9545905519। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।